فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین، فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین، باپ کو کیوں ہو زحمتیں ایسے ہوں جب کہ نور عین، حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر، حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر، دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ صلوات بابا سے بلند۔ چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، اور یہاں ہے سر رسول علیہ السلام کا، زندان سے چھوٹ کے آئے ہیں مقتل میں اہل بیت، لاشا اٹھانے سے رسول انام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، تیاریاں ہے دفن شہیدان پاک کی، مرقد بنا ہے رن میں ہر ایک نیک نام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، فضا پکار بیبیوں آ کر شریک ہوں، سجاد دفن کرتے ہیں لاشا امام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، بھائی کے ساتھ گاڑ دو
کاش بھی مجھے تھا یہ بیان زینب ناشاد کام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، کہتی تھی بانو ملتا جو ایک جام شیر کا، کہتی تھی بانو ملتا جو ایک جام شیر کا، دلوات فاتح علی اصغر کے نام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، یا رب دعا ہے تجھ سے یہ ہر دم انیس کی، روزہ دکھا حسین علیہ السلام کا، یا رب دعا ہے تجھ سے یہ ہر دم انیس کی، روزہ دکھا حسین علیہ السلام کا، چہلم ہے آج سرور عالی مقام کا، صلوات بآواز بلند۔ بآواز بلند صلوات۔ زینب لپٹ کے کہتی تھی قبر امام سے، زینب لپٹ کے کہتی تھی قبر امام سے، بھیا اٹھو کہ آئی ہے ہمشیر شام سے، زینب لپٹ کے کہتی تھی قبر امام سے، بھیا تمہارے بعد ستم اس قدر ہوئے، بھیا تمہارے بعد ستم اس قدر ہوئے، دل پس کے رہ گیا ہے غم نا تمام سے، دوروں پہ دور کھائے کوفے سے شام تک،
فریاد میں کروں گی رسول انام سے، بچوں کو آہ شمر نے اتنا ستایا تھا، بچوں کو آہ شمر نے اتنا ستایا تھا، وہ ابھی کانپ اٹھتے ہیں ظالم کے نام سے، بھیا اٹھو بہن کو اس ہمت کی داد دو، آئی ہے فتح یاب وہ دربار شام سے، آئی ہے فتح یاب وہ دربار شام سے، اطرت سے کلمہ گویوں نے ایسا کیا سلوک، اطرت سے کلمہ گویوں نے ایسا کیا سلوک، کرتا نہیں جو کوئی کنیز و غلام سے، کرتا نہیں جو کوئی کنیز و غلام سے، خورشید کربلا کی زمین کانپنے لگی، خورشید کربلا کی زمین کانپنے لگی، یہ بین سن کے زینب عالی مقام سے، زینب لپٹ کے کہتی تھی قبر امام سے، صلوات بابا سے بولیں۔ برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات۔ تھوڑا سا آپ آگے بڑھ سکتے ہو تو بڑھ جائیں، جس سے بعد میں آنے والے مومنین جو ابھی سے پیچھے کھڑے ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو بہتر ہی ہوگا، آپ پر ان کا احسان ہوگا۔ ایک بار صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اگر گنجائش کر سکتے ہو تو کر لیں، یہ درخواست ہے میری، کیونکہ ابھی تھوڑا سا جگہ ہے بیچ بیچ میں، اگر آپ پر کر سکتے ہو تو اس جگہ کو پر کر لیں۔
پاک کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو آواز بلند سلام فاتحہ بسم اللہ بدن پہ جامع احرام دل میں پوز علی یہ تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة والشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائب مجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات ذوی الاحترام جو دونوں عشرے آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ 40 کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے ویسے کل بھی مجلس ہے جو ہم خطاب کریں گے کل تک ہیں میں نے اس بات کو کئی بار آپ کے سامنے تکرار کیا کہ اہل بیت درمیانی امت ہیں ہمارے اور پروردگار کے درمیان اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا تاکہ یہ خدا کے قریب رہیں اور جسم اس لیے دیا کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے قریب رہیں ان کو اللہ نے معصوم بنایا معصوم بنانا اہل بیت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ دین کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم جیسے کاندھے دین کا اتنا بدنی بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے معصوم کاندھے ہونے چاہیے اب چونکہ میں نے اعلان کیا تھا اور 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے کہ آج کی تقریر وقف ہے بنام نامی و اسم گرامی عقیل بنی ہاشم شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ برابر سنتے رہتے ہیں میرا ایک طرز کلام ہے کہ ان گوشوں کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ میں نے کئی بار یہ کہا کہ یہ معصومین جو ہیں ان کا مطمع نظر ہدایت ہے حکومت نہیں ہے حکومت کی لائن الگ ہے ہدایت کی لائن الگ ہے بادشاہ قید میں چلا جائے تو بادشاہ نہیں رہتا نبی اور امام قید میں چلا جائے تو یوسف نبی رہتے ہیں بادشاہ جھوٹ بولے تو بادشاہ رہتا ہے نبی اور امام جھوٹ بول دے تو پھر وہ نبی امام نہیں رہتا یہ دونوں کی لائنیں الگ الگ ہیں مگر اللہ نے آدم سے لے کے اور آخر زمانے تک ہر دور میں کبھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا اور ہمیشہ اولیاء اللہ کا معصومین کا اور انبیاء کا اور ائمہ کا جو مقابلہ تھا وہ وقت کے سب سے فاجر اور فاسق ترین انسانوں سے تھا اب میں آ رہا ہوں شہزادی تک وقت کے فاسق و فاجر ترین انسانوں سے مقابلہ تھا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فمن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوم لیسوا بها بکافرین قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم نے ان لوگوں کو کتاب اور حکمت دیا کہ ساری دنیا بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوٌّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور ہم نے ہر نبی کے ساتھ
एक खुला हुआ उसका दुश्मन रखा है, और ये दुश्मन इंसानों में से भी है, जिन्नातों में से। ये परवरदिगार ये अंबिया के सामने दुश्मन क्यों रखा? कहा ताकि नेकी के मुकाबले में बदी समझ में आ जाए, रात के मुकाबले में दिन समझ में आ जाए। लिहाजा आज आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं तमहीद में न जाके सारा वक्त फजाइल पे दूं कि अब वक्त के फासिक व फाजिर इंसानों से मुकाबला है। इब्राहिम का मुकाबला नमरूद से है, मूसा का मुकाबला फिरौन से है, पैगंबर का मुकाबला अबू लहब और अबू जहल से है, अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला शाम से है, और हुसैन का मुकाबला यजीद से है। वो सब कर सकते हैं, ये वो कुछ नहीं कर सकते, वो उतना ही करेंगे जो मर्जी मशरियत के मुताबिक। मैंने कहा ना कि दोनों की लाइनें अलग अलग है। ये हिदायत वाली लाइन है, वो हुकूमत वाली लाइन। हुकूमत में हर चीज जायज है, बे इख्तिदार बचा रहे। यहां वो करेंगे कि जो काम हिदायत के आईने में होगा, जो मर्जी मशरियत के मुताबिक होगा। आप बताइए, नबी, इमाम, प्रॉफिट, रसूल, मासूम फासिक व फाजिर से कैसे मुकाबला करेगा? वो हर हथकंडे अपनाएगा, ये नहीं अपना सकते, तो मुकाबला कैसे हो? मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और समंदर में डालिए, कहिए तहजीब साहब तैरिए। हाथ पैर बांध के कहिए तहजीब साहब तैरिए, बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, तहजीब साहब को डाल दिया समंदर में, तैरिए। मैं कहूंगा भाई मेरा हाथ पैर जब आपने बांध दिए तो मैं तैरूंगा कैसे? अल्लाह ने अंबिया, आइम्मा, मासूमीन के हाथ पैर इसमत से बांध दिए और कहा मुकाबला नमरूद का करो, मुकाबला शद्दाद का करो, मुकाबला फिरौन का करो, मुकाबला अबू लहब का करो, मुकाबला अबू जहल का करो। कैसे करेंगे? परवरदिगार अल्लाह ने आवाज से घबराओ नहीं, पढ़ो कुरान और पढ़ो तारीख। इसीलिए हमने हर जमाने में अपने नुमाइंदों को भेजा कि वक्त के सबसे खराब तरीन मखलूक से उनका मुकाबला करना है। परवरदिगार करेंगे कैसे? कहा हमने इनको एक अलग से चीज अता की है, हिकमत इसमत के अलावा एक अलग से चीज अता की है। उस चीज का नाम है हिकमत। नबी और इमाम और मासूम जो बातिल का मुकाबला करता है और अपनी जिंदगी गुजारता है, वो हिकमत से गुजारता है। अब आप पूछेंगे हिकमत क्या है? तो अल्लाह कहता है यह मोमिनीन के लिए हमारा एक तोहफा है, अपने खास बंदों के लिए अंबिया। हिकमत क्या है? एक जुमले में हिकमत की तारीफ समझिए। हिकमत कहते हैं कि बातिल के मुकाबले में हक हालात को देखे, वो तय खुद करेगा। हक यानी नबी और इमाम और मासूम हालात का तजिया करने के बाद खुद से एक ऐसा रास्ता अपनी अक्ल से निकाल ले जिसमें बातिल का वार भी खाली चला जाए और दीन भी महफूज रह जाए। नहीं समझे आप मैं क्या कह? मैंने बड़ी बात कह दी कि हिकमत उसको कहते हैं जिसमें बातिल का वार भी खाली चला जाए और दीन भी महफूज रह जाए और मर्जी मशीयत के मुताबिक हो जाए। यही काम इब्राहिम ने किया, यही काम मूसा ने फिरौन के मुकाबले में किया, यही काम रिसालत उमाम ने अबू लहब और अबू जहल के मुकाबले में किया, और यही काम अमीरुल मोमिनीन ने शाम के मुकाबले में। हिकमत मासूमीन का सबसे बड़ा असलहा है। अब मैं देखता हूं कौन खामोशी सुनता। हिकमत मासूमीन का सबसे बड़ा, जो जितना बड़ा हकीम है वो उतना बड़ा नुमाइंदा परवरदिगार। जो जितना बड़ा हकीम है वो उतना बड़ा खासान खुदा है। हिकमत का मुकाबला कर, इसलिए कि अब शातिर बढ़ते जा रहे हैं तो हिकमत भी बढ़ती जाएगी। आदम से बड़ी हिकमत इब्राहिम की, मूसा की, ईसा की, उससे बड़ी पैगंबर की। हिकमत का जमाना है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि इतना बड़ा वाकयात करबला है जो मैं कई दिन से कह रहा हूं कि 3 पार्ट में है, मदीना, कूफा और शाम, करबला। इमाम आली मकाम ने करबला की तशहीर, मकसद करबला को शहजादी ज़ैनब के हाथ में क्यों रखा? इमाम हुसैन ने अपना मुस्तकबिल, करबला का मुस्तकबिल और अपना मकसद ज़ैनब की हथेली में क्यों रखा और कहा जाओ ज़ैनब तुम फातिह कूफा और शाम बनो? क्यों? इसलिए कि अव्वलीन और आखरीन में ज़ैनब से बड़ी हिकमत किसी के पास नहीं थी। इसलिए कि जितने खराब दौर का तजर्बा ज़ैनब के पास था किसी के पास नहीं था। ज़ैनब ने नाना का दौर देखा, माँ का दौर देखा, बाप का जमाना देखा, 2 भाइयों का जमाना देखा है। ज़ैनब से बड़ा तजर्बा किसी के पास नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी मुझे आने दीजिए जरा फजाइल पर। ज़ैनब से बड़ा मुशाहिदा नाना के खराब तरीन दौर को गरीब से ज़ैनब ने देखा, बाप के बदतरीन दौर को
अय्यारियों को, मक्कारियों को ज़ैनब ने करीब से देखा। हसन का 10 साला दौर ज़ैनब ने देखा, हुसैन के हालात को। लिहाजा ज़ैनब से ज्यादा हिकमत किसी के पास नहीं थी, इसलिए इमाम आली मकाम ने करबला के मुस्तकबिल को ज़ैनब के हाथ में रखा। अब आखिरी फर्द तक मेरी बात पहुंचे, या जो लोग नीचे सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, मेरे तकरीर को गौर से सुने, गौर से सुने। यह हर जगह मैं नहीं पढ़ता, इसलिए कि हर सीना और हर अक्ल मोहब्बत आले मोहम्मद को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मगर मैं समझ रहा हूं कि मेरा जुमला यहां जाया नहीं होगा। मैं पूरे 30 साल से मजलिस से पढ़ रहा हूं, अपने पूरे मुताले को समेट कर एक जुमले में कह रहा हूं कि अगर करबला सुना रहा हूं आपको शाम, यही मकसद है आज, कि अगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद, लाशों को पामाल करने के बाद, खेमों में आग लगाने के बाद यजीद अहले बैत अतहार को वहीं से मदीने भेज देता और अपने फौज और कमांडरों को शाम बुला लेता, तो आज की हिस्ट्री में फातिह आजम यजीद कहलाता। नहीं, मैं तजिया सुना रहा फिर, इसलिए कि एक लफ्ज भी अगर इधर उधर आपने देखा तो बाद में कहेगा तेरे सामने क्या पढ़ा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, जो मैं कह रहा हूं उसको मैं अभी आपके सामने कुशादा करूंगा, तब आपके अंदर एक विजदानी कैफियत पैदा होगी और अजमत ज़ैनब समझ में आएगी। अगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद अपने कमांडरों को अपने दरबार में बुला लेता और अहले बैत को वहीं से कहता मदीने चले जाओ, तो आज के तारीख में, आज की रवायत में, आज के मीडिया में, आज के प्रोगंडा में, आज के तारीखों में न जाने क्या क्या यजीद कहा जाता। फातिह आजम था, ये था, वो था। यजीद से भूल ये हुई कि उसने कब्र अपने हाथ से खोद लिया, उसने कटे हुए सरों के साथ खुले हुए सरों को भी शाम में बुलाया, यह उसकी मौत का सामान बन गया। ज़ैनब का आना, अहले बैत का आना उसकी मौत का मुकद्दमा बन गया। क्यों? कल सज्जाद की तकरीर आपने सुनी थी, आज ज़ैनब का किरदार देखिए, दोनों में फूफी और भतीजे के किरदार का फर्क देखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सारे लोग तो करबला में थे नहीं, इतना बड़ा आदमी मारा गया, इतना बड़ा वाक़या करबला हुआ, लिहाजा जिसने सुना हर आदमी को फिक्र हुई कि करबला में क्या हुआ। अब सज्जाद की तकरीर अलग रखिए, आज ज़ैनब की तकरीर सुनिए। अब हर इस रुख से करबला समझिए। अब हर आदमी के अंदर यह फिक्र हुई, चाहे वो बसरे वाले हों, कूफे वाले हों, यमन वाले हों, हिजाज वाले हों, कि आखिर ये जो लड़ाई हुई तो अब्बास गए थे, लड़ाई हुई, हुसैन गए थे, लाखों की फौज थी, इधर तो 70-72 लोग थे, जीता कौन, हारा कौन, गालिब कौन हुआ, मगलूब कौन हुआ, लड़ाई कैसे हुई, भूख और प्यास का क्या आलम है, हर आदमी जानना चाह रहा था। लिहाजा यजीद ने कहा घबराओ नहीं, पूरे इस वक्त ग्लोबल जो है, जो तो हमारी हुकूमत है, मैंने कहा इंडिया चाइना के अलावा पूरी दुनिया पर यजीद की हुकूमत थी। यजीद ने दावत देके पूरे दुनिया के रावियों को बुलाया, पूरे दुनिया के मीडिया को बुलाया, पूरे दुनिया के लिखने पढ़ने वालों को बुलाया, कहा हमारे दरबार में हम बताते हैं कि कौन जीता कौन हारा। जो करीब के जमाने में हिस्ट्री लिखी जाती है, बाद में वही मोतबर समझी जाती है। वाक़या करबला के फौरन 1 महीने के अंदर तारीख करबला कलमबंद होने की तैयारी हो रही। तारीख करबला कलमबंद हो रही है। 10 मुहर्रम को करबला रूनुमा हुई और 8-9 सफर 10 सफर के अंदर ये दमिश्क में दाखिल हो गए हैं, यानी 1 महीने के अंदर तारीख करबला मुरत्तब हो रही। मैं फिर कह रहा हूं, हर लफ्ज को रुक के सुनिए कि तारीख लिखने वाले का मजहब होता है, हुकूमत होती है, ये सारी चीजें तारीख पे असर अंदाज होती हैं, और जो करीब के जमाने में तारीख लिखी जाएगी वही बाद में मोतबर समझी जाएगी। यजीद के जमाने में लाखों दरबार में राइटर आ गए, रावी आ गए, फ्री में कलम और कागज तकसीम कर दिया गया, ताकि पूरी दुनिया में तारीख करबला कलम बंद करके पूरी दुनिया में नश्र किया जाए कि करबला में क्या हुआ। और यजीद ये चाह रहा है कि हम दुनिया को बताएं कि हम फातेह हैं, हमने हुसैन को मार डाला, कत्ल कर दिया, लाशें पामाल की, उनके बच्चों को असीर किया, उनकी औरतों को कैदी बना के देखो दरबार में लाके खड़ा कर दिया, और उसके बच्चे को भी हमने असीर बना लिया। चुनांचे फ्री में कागज और कलम बांटा गया। बस 2-3 मिनटें ये तमहीद में लगे, अब यहां से फजाइल सुनिए। चुनांचे जब दरबार बिल्कुल छलक गया, तिल रखने की जगह नहीं थी, पूरा पैक है, हाल, बरामदा, सहन, बाहर
ठाठे मारता हुआ मजमा, तबल्लुकबाज, चापलूस, हुल्लड़ हंगामा करने वाले सारे लोग आ गए। अहले बैत का कहकहा लगाने वाले, मजाक लगाने वाले और तंज करने वाले सब आके, तमल्लुकबाज, चापलूस सब बैठे हैं। यजीद भी आके तख्त पे बैठ गया। अब वो चाहता है कि करबला कलम बंद की जाए, हिस्ट्री बने, तारीख बने। इसलिए करबला हो गई ना, तब तो तारीख में यह बात आए। लिहाजा अब वो अपने मचान से कह रहा, अपने तख्त से, अपना चीफ कमांडर कौन है करबला का? उमर साद। अब बहुत जग के सुनिए, कहता है उमर साद, ये देखो हमारे लश्कर का चीफ कमांडर था, करबला की लड़ाई यही लड़के आया। एक बुलंदी दी उसको, एक स्टूल दिया जिस पर उसको खड़ा कराया गया और कहा बता इस मजमे को कि करबला की लड़ाई कैसे हुई, बताओ पूरी दुनिया को, ताकि तारीख मुरत्तब हो कि करबला की लड़ाई कैसे हुई, बताओ। उमर साद बुलंदी में खड़ा हुआ, कहा अमीर आप क्या चाहते हैं? कहा हम ये चाहते हैं कि दुनिया को बताओ कि करबला की लड़ाई कैसे हुई। उमर साद कहता अमीर मुस्कुरा के, करबला में लड़ाई उड़ाई कहां हुई? करबला में कोई लड़ाई हुई नहीं, करबला में कोई जंग हुई नहीं। अब ये है चीफ कमांडर जो स्टेटमेंट दे रहा है, करबला में कोई लड़ाई नहीं हुई। कहा क्यों, करबला में लड़ाई नहीं हुई? कहा नहीं। क्यों? कहा अमीर हमने तो समझा था कि हुसैन के रगों में अली का खून है, या बड़ा बहादुर होगा, बड़ा शुजा होगा, बनी हाशिम का बेटा है, अबू तालिब का पोता है, मगर अस्तगफिरुल्लाह आज़म बिल्लाह, हुसैन तो बड़ा बुज़दिल निकला, बड़ा डरपोक निकला, बड़ा बुज़दिल निकला। कहा हुआ क्या? कहा अमीर करबला में हम लोग 6 लाख थे, हुसैन 70-72 आदमी थे। सुबह सवेरे हम उनके ऊपर हमलावर हुए तो हुसैन अपने बच्चों और असहाब को लेके जान बचाने के लिए बिलों में ऐसे भाग रहा था जैसे जानवर बिलों में भागता। हमने पकड़ के खत्म कर दिया, 5 मिनट में करबला की लड़ाई खत्म हो गई। सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। अब आप सरों के ऊपर, आप सबके सरों पे मैं कुरान रख के एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इस वक्त कोई जवाब देने वाला न होता तो यही हिस्ट्री बनती, यही तारीख बनती, यही किताबों में लिखा जाता, यही रवायतों में लिखा जाता। आज आप अपने मजलिसों में चिल्लाते रहते, कोई सुनने वाला न था, सब कहता अरे यजीद के सामने स्टेटमेंट दिया गया, सज्जाद भी तो बैठे थे, ज़ैनब भी तो बैठे थे, हज़रत अहले बैत भी तो थे। लिहाजा जो करीब के जमाने में बातें लिखी गई वही ऑथेंटिक और मोतबर मानी जाती। अब वो कमांडर ने स्टेटमेंट दिया, सारे रावियों ने कलम और कागज उठाया कि अब करबला को कलम बंद करें कि हुसैन बड़ा बुज़दिल था, वो अपने अहलो अयाल को लेके भाग रहा था और फौज यजीद हमलावर हो गई और जैसे जानवर बिलों से निकाल के मारे जाते हैं वैसे हुसैन को कत्ल कर दिया गया। बस जैसे उमर साद ने कहा हुसैन तो बड़े बुज़दिल निकले, हम उनके ऊपर हमलावर हुए, वो अपने अहलो अयाल के साथ ऐसे भाग रहे थे जैसे जानवर बिल में भागता हो। अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब रसन बस्ता अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है सकलत कौम ने कहा यू हल्का साहब, एक झूठे इब्ने झूठे, तेरी मां तेरे मातम में बैठे, सच बोल। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादी ज़ैनब कहते सकलत कौम में का अय्युहल का भरा दरबार। अब कागज और कलम रावियों के चलने वाले हैं, करबला कलम बंद होने जा रही कि ज़ैनब खड़े होकर कहती तेरी मां तेरे मातम में बैठे, सच बोल, सच बोल। तारीख कहते हैं कि चलते हुए कलम ठहर गए। अरे ये क्या हो गया? यजीद का तो कमांडर ये स्टेटमेंट दे रहा है और कैदी औरत कह रही सच बोल। इसका मतलब ठहरो, अभी तारीख न लिखो, ठहरो, सच्चाई मालूम करो, ठहरो, हकीकत मालूम करो। ज़ैनब की एक डांट ने चलते हुए कलम को रोक दिया, तारीख का धारा मोड़। और अब मुड़ी जनाब ज़ैनब यजीद की तरफ और फरमाती है यजीद सच्चाई वो नहीं है जो तेरा कमांडर बता रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कैसे कि करबला की लड़ाई सच सच बताए दुनिया के सामने, झूठ बोल रहा। बोल इससे अपने कमांडर से कि सच बोले। यजीद पसीने पसीने हो गया। मजमा
अंगुश बदंदा है, सुई गिर जाए तो आवाज की साइलेंट मजमा। ये हो क्या गया? चीफ कमांडर ये बयान दे रहा है, कैदी औरत कह रही है सच बोल, झूठ बोल रहा, और यजीद से कह रही है कि अपने कमांडर से कहे कि सच बोल। अब यजीद जान के अनजान हो गया, जान के अनजान हो गया। अब ये क्या करिएगा कि जब मौत आती है तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं, कफस तैयार हो गया। अब अनजान बन के घबरा के उसी अपने चीफ कमांडर जिसको खड़ा किया कि यह हमारा चीफ कमांडर था, उसी से पूछता है, ए उमर साद ये औरत कौन है? उमर साद अब ज़ैनब कहती तो अपने मुंह से तो वो बात नहीं थी जो दुश्मन कह रहा है। यजीद कह रहा है उमर साद ये औरत कौन है जो बोल रही है? कहा तुम्हें नहीं मालूम अमीर, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब। अच्छा अच्छा यही ज़ैनब है? कहा हाँ यही ज़ैनब है। कहा हाँ यही ज़ैनब। अब यजीद कहता है ए ज़ैनब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ज़ैनब कहती कहो क्या कहना चाहती हो? यह वक्त की बात है कि आज मैं तुम जैसे से बात कर रही हूं, यह वक्त की बात है कि मैं तुझ जैसे से बात करूं। ज़ैनब के खुतबे देखिए, एक एक लफ्ज़ मैं सुना रहा हूं जो तुझ जैसे से मैं बात करूं, इसलिए कि तुझ जैसे जलील से बात करना मेरे लिए नागवार था, मगर आज अपने हक के लिए कहना आईने सवाब है। बोल क्या बात? कहा अच्छा मेरा कमांडर झूठ बोल रहा है ना, कसम खुदा की 100 मजीस मुझसे अजमत ज़ैनब पे पढ़वाइए तो मेरे एतबार से मुझे जो जुमला पसंद है इससे बड़ा जुमला नहीं है। क्या हकीकत, खला दरबार, भरा दरबार, दुश्मन का मजमा। और यजीद कहता है ज़ैनब ठीक है मेरा कमांडर झूठ बोल रहा है, तो तुम बताओ कि करबला की लड़ाई की सच्चाई क्या है? हाय 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 हाय। मेरा कमांडर, नहीं रुकिए कहने दिए, मेरा कमांडर झूठ बोल रहा है तो तुम बताओ कि करबला की लड़ाई की सच्चाई क्या है? जनाब ज़ैनब रसल मस्ता खड़ी हुई, कहा यजीद सुन सच्चाई। अभी तेरे कमांडर ने पूरे मजमे के सामने कहा, अभी तेरे कमांडर उमर साद ने, बस जुमला जाया न करिएगा, अभी तेरे कमांडर ने भरे मजमे में यह कहा कि करबला में हम 6 लाख थे, हुसैन 70-72 थे, हम हमलावर हुए तो हुसैन ऐसे भाग रहे थे जैसे जानवर बिलों में भाग रहा हो, और अपनी जान बचा के भाग रहे थे, हमने उन्हें पकड़ के कत्ल कर दिया। तो पूछ अपने कमांडर से कि ये इनाम लेने के लिए तनहा क्यों आया? 6 लाख का लश्कर क्या हुआ? मोहम्मद वाले मोहम्मद। बता पूछ अपने कमांडर से कि ये इनाम लेने के लिए तनहा क्यों आया? 6 लाख का लश्कर क्या हुआ? उसके बाद जनाब ज़ैनब ने क्या जुमला कहा, एक औरत इससे ज्यादा तंज हुकूमत पे नहीं कर सकती थी। यह है आले मोहम्मद, यह है हमारे आले मोहम्मद। दुनिया उनकी तरफ फेंकती है पत्थर, वो पत्थर जब उनके दामन में आता है तो बनता है फूल। दुनिया फेंकती है पत्थर, जब उनके दामन में पहुंचता है तो वो फूल। अब सुनिए फिर, यजीद ने 2200 किलोमीटर करबला से कूफा, कूफा से नार्थ इराक, मूसल, तिकरित, तिकरित से हलब, हलब से बालबाग, बालबाग से फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन होते हुए दमिश्क में क्यों फिर आया? ताकि लोगों के अंदर रोब और दहशत तारी हो कि हमने अहले बैत को इतना जलील और रुसवा किया। जिस चीज को यजीद ने जिल्लत का जरिया बनाया, उसी को ज़ैनब ने अपने लिए इज्जत का जरिया बनाया। फरमाती है सुन यजीद सुन सुन, पहुंच अपने कमांडर से कि तेरा 6 लाख का लश्कर जो करबला में था वो क्यों नहीं आया इनाम लेने के लिए? वो लश्कर कहां चला गया? ये तनहा को चंद लोग आए हैं। ए यजीद, क्या तंज किया कसम खुदा की, जरा नजाकत को समझिए। यजीद वो है जो तख्त पे बैठा है, ज़ैनब सामने खड़ी है, कहते हैं यजीद तुझे क्या मालूम कि करबला में लड़ाई कैसे हुई? इसलिए कि तू तो छुप के घर में बैठा, मेरा भाई मैदान में था।
मेरा भाई मैदान में था। मेरा भाई मैदान में था। हिम्मत होती तो आता करबला में, आता करबला में तो छप के बैठा है। मेरा भाई तो मैदान में था। और फिर मैंने वो जुमला कहा कि जिसको जिल्लत का जरिया बनाया, ज़ैनब ने कैसे उसको इज्जत को अपनी असीरी का जरिया बनाया, वो सुनिए। कहते यजीद, हम बताते हैं कि करबला की लड़ाई कैसे हुई, हम बताते, तुझे नहीं मालूम इसलिए कि तू तो अपने महल में छुपा है। सुन, बाजारों से हम आए, कोफा से हम आए, मूसल से हम आए, तिकरे से हम आए, हलब से हम आए, बालबाग से हम आए, पूरा इराक और अरब टहल के हम आए हैं। शाम में 3 दिन तक दमिश्क में हमको घुमाया है। हम तुम्हें खबर देते हैं, जा निकल बाहर, पता ना कोफा और शाम में कोई एक ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें रोने वाले या रोने वालियां अपनों का मातम न कर रही। ऐसे मेरे भाई अब्बास ने लड़ाई लड़िया। ऐसे मेरे भाई अब्बास ने। या पता लगा कोफा और शाम में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें रोने वाले या रोने वालियां अपनों का मातम न कर रहे। ऐसे मेरे भाई अब्बास ने करबला में लड़ाई लड़ी, ऐसे मेरे भतीजों ने लड़ाई लड़ी। जनाब ज़ैनब ने तारीख के धारे को मोड़ दिया, तारीख के धारे को मोड़ दिया जनाब ज़ैनब, और सारे जो राइटर लिखने वाले थे कलम रुक गए, और जनाब ज़ैनब ने वो लिखवाया जो वो चाहती थी, वो न लिखा जो यजीद चाह रहा था। और कहा ठहर, बताती हूं क्या। कहा सुनो सुनो, तुम सब निकलो बाहर। राइटरों से कहा जाओ पता लगाओ, कोफा और शाम में कोई एक ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें रोने वाले या रोने वालियां अपनों का मातम न कर रही। ऐसे मेरे भाई भतीजों ने लड़ाई करबला में लड़ी। अब जो मीडिया था वो कहने लगा बीबी हम यही तो जानने के लिए आए हैं कि करबला की लड़ाई कैसे हुई, जरा तफसील से करबला की जंग बताइए। यजीद बैठा है, इतना मजबूर यजीद पूरी जिंदगी में कभी नहीं था। रुकिए सुनिए, इतना मजबूर कभी नहीं था। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई तकरीर शुरू कर रही, कह रहे जानने वालों जान लो, पहचानने वाले पहचान लो, करबला में ऐसे लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई ने मैमना पे अब्बास ने ऐसे हमला किया था, मैसरा पे ऐसे हमला किया था, आखिरी वक्त मेरे भाई हुसैन ने ऐसे हमला किया कि कोफे के दीवारे से फौजें टकराने लगी थी, और मोहम्मद ने ऐसे हमला किया, कासिम ने ऐसे हमला किया, शुजाआ ने ऐसे हमला किया। जनाब ज़ैनब बता रही है, और वो रावी है कि जो तहरीर लिखते चले जा रहे हैं, वाक़यात करबला कलम बंद हो रहा है, और जनाब ज़ैनब फजाइल भी सुना रही हैं, जनाब ज़ैनब मसाइब भी सुना रही हैं, और शामी कह रहे हैं वाह वाह वाह, और जरा बताइए, और जरा बताइए, और जरा बताइए। अब जब वाक़यात करबला कलम बंद कराने लगी तो एक मरतबा शामी कहने लगे कि जरा करीब से अपने हसब और नसब को बताइए। तो जनाब ज़ैनब ने अपने हसब और नसब को बताना शुरू किया। इस शामियों, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो वो हमारा नाना है, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते वो हमारा नाना है, हमजा हमारे घर के हैं, जाफर तैयार हमारे घर के हैं, खदीजतुल कुबरा जिनकी दौलत से इस्लाम फैला वो हमारी जद्दा मायदा है। जनाब ज़ैनब ने पूरी तारीख पलट के रख दी। अब शामी कहने लगे वाह रे ज़ैनब, वाह रे ज़ैनब, तो ये लड़ाई क्यों हुई? तो जनाब ज़ैनब ने बताना शुरू किया कि यह लड़ाई क्यों हुई। मेरे भाई से सवाल बैयत हो रहा था, इस्लाम में तब्दीली हो रही थी, हलाल मोहम्मद को हराम किया जा रहा था, हराम मोहम्मद को हलाल किया जा रहा है। बताओ तुम नहीं जानते कि मेरा भाई कौन था? मुख्तलिफुल मलाइका हम लोग हैं, हमारे घर फरिश्ते आया जाया करते हैं, हमारे घर फरिश्ते आया जाया करते हैं।
ہیں, اس کے گھر غنا اور شراب ہے, ہمارے گھر وحی و الہام ہے. جناب زینب نے بہت تفصیلی خطبہ دیا. اس کے بعد یزید کے دم مڑ کے کہتی ٹھہر ٹھہر یزید, تو خوش ہو گیا کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر لیا تو بڑا کام کر لیا؟ نہیں, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے کہ لا یحسبن الذین کفر انما نملی لہم خیر لانفسہم؟ ہرگز 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 کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اس میں ان کے لیے کوئی فائدہ ہے. نہیں, خدا ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ اپنے عذاب میں اضافہ کر لے. یزید اب زینب کہہ رہی ہے کہ تیری حکومت کے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں, گنتی کے رہ گئے ہیں, گنتی کے رہ گئے ہیں, تیری حکومت کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں. اور اس دن کو یاد کرنا کہ جب میرا نانا مدعی ہوگا, ہم سب کے سامنے قضیہ رکھا جائے گا, اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ یزید سے جناب زینب تخاطب کر رہی ہیں. اس کے بعد یزید کے کچھ تملق باز اور چاپلوس کچھ آوازیں بلند کرنے لگے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آج بفری ہے, آج فاتح خیبر کی بیٹی کو غیظ آ گیا ہے. جب تملق باز کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا خطبہ ڈسٹرب ہو جائے تو شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جلال سے دیکھا اور کہا ہوش کو تو خاموش, مجھے آج خطبہ کہنے دو. اتنا روب تھا کہ سارے لوگ خاموش ہو گئے. انسان تو انسان, جو جانور تھے وہ بھی چپ ہو گئے. شیخ مفید کہتے ہیں ان کے گلے میں جو گھنٹیاں ہل رہی تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ خاموش ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کانت نائبۃ الامام, اس وقت زینب نائب امام بن کے بول رہی تھی. کانت نائبۃ الامام, اس وقت زینب بحیثیت نائب امام ساری کائنات اپنے کنٹرول میں لے کے زینب بول رہی تھی. اور یہ ایسا بفرا ہوا خطبہ تھا کہ دربار یزید میں زلزلہ آ رہا تھا. اور یزید کی حیثیت ایسی تھی جیسے کوئی شکاری شکار کر کے جانور کو اپنے پنجڑے میں بند کر دے اور وہ مایوسی اور مجبوری سے ہاتھ ملتا رہے, ویسے یزید دیکھ رہا تھا. اور جناب زینب تاریخ کربلا, یہ جو آج تاریخ کربلا آئی ہے یہ زینب کا احسان ہے جنہوں نے دربار یزید میں سچی سچی تاریخ لکھوا دی. اس کے بعد اب مجمع کہنے لگا زینب ذرا اور قریب سے بتاؤ. زینب نے بتانا شروع کیا, کعبہ یہ ہے, قرآن یہ ہے, شریعت یہ ہے, نانا یہ ہے, میرا باپ یہ ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرے پیر میں بھی حالات کی بیڑیاں ہیں مگر آپ سمجھ جائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی زینب نے کہا قرآن یہ, شریعت یہ, حلال یہ, حرام وہ, میرے بھائی نے یہ کیا, میرے بھائی نے وہ کیا, میرے نانا نے یہ کیا, میرے بابا نے یہ کیا, بابا کا دین یہ, نانا کی شریعت یہ, بھائی کی شریعت یہ, قرآن یہ, حدیث یہ, چاروں طرف سے شامی چلانے لگے. واہ رے زینب, تم نے ہلاکت سے بچا لیا. دین زینب کا نام, شریعت زینب کا نام, قرآن زینب کا نام, کعبہ زینب کا نام, اسلام زینب کا نام. اب جب پورے دربار یزید میں زینب 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 ذہن وہاں تک لے جائیے جہاں میں لے رہا ہوں, جب چاروں طرف زینب زینب ہونے لگا تو زینب نے اپنے کو ایک قدم پیچھے کر لیا. نہیں, میں فضائل سنا رہا ہوں. زینب نے اپنے کو ایک قدم پیچھے کر لیا اس لیے کہ زینب نہیں چاہتی تھی کہ میرے نانا کا دین, میرے باپ کا دین, میرے بھائیوں کا دین عورت سے پہچانا جائے. نہیں سمجھا. زینب کو زینب رہنا تھا, وہ نہیں بننا تھا. زینب کو زینب رہنا تھا. زینب کو زینب رہنا تھا. زینب جانتے تھے کہ نانا کا دین, باپ کا دین, بھائیوں کا دین عورت سے نہیں چلے گا. لہذا زینب نے یہ نہیں چاہا کہ بعد میں کہا جائے کہ قالت زینب, زینب نے کہا رسول اللہ ایسے کھاتے تھے, رسول اللہ ایسے چلتے تھے, رسول اللہ ایسے سوتے تھے. لہذا میرے جملے کو قدر کریے گا. 100 مجلس میں یہ جملہ بھاری, جب چاروں طرف سے زینب زینب ہونے لگا, دین زینب, شریعت زینب, قرآن زینب, اسلام زینب, ایمان زینب, کعبہ زینب. میں کہتا زینب کھڑی ہوئی, شامیوں تم نے ہمیں پہچان لیا؟ کہا ہاں ہاں پہچان لیا, پہچان لیا. کہا تو اب ہمیں پہچان لیا تو اب جانو کہ تمہارا امام یہ قائدی ہے. پھر دین کو لا کے سید سجاد کے ہاتھوں میں رکھ دیا. کہا شامیوں تمہارا امام یہ قائدی ہے, اسے پہچانو, اسے پہچانو. نہیں سمجھے آپ؟ جس کے لیے کربلا ہوئی اس مسئلے کو فوراً 1 مہینے کے اندر زینب نے حل کر دیا.
اسی لیے زینب کو شیر دل بیوی کہتے ہیں, اسی لیے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں, سیدہ کربلا کہتے ہیں. زینب کا وہ کمال تھا کہ یزید کے دربار میں, اب میرا جملہ ضائع ہو جائے گا تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی, کہ زینب کا کمال دیکھیے, یزید کے دربار میں بیعت ہی کا تو جھگڑا ہے نا, جھگڑا تو بیعت ہی کا تھا. یزید کے دربار میں, یزید کے مجمع میں, یزید کے سامنے اپنے بھتیجے کی امامت کا اعلان کر دیا. یہ ہے زینب. جس بیعت کا جھگڑا تھا کربلا کے مہینے اندر زینب نے حل کر دیا, اور میڈیا یزید کا, بلایا مجمع یزید کا, کاغذ قلم یزید کے, امامت کا اعلان زینب کی زبانی ہو رہا. لکھو لکھو, اگر جان لیا تو جانو, ہم کو پہچان لیا کہاں, تو اب ان کو پہچانو. وقت کا امام یہ ہے, میرا بھتیجا سید سجاد یہ امام ہے, اس کی بیعت کرو, اس کی بیعت کرو. اما یزید ہاتھ ملتے رہ گیا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فاتح کوفہ و شام زینب ہے. یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم کی حکمت, عقیلہ بنی ہاشم کی حکمت. کہا پہچان لو, یہ تمہارا امام ہے, اس کی اطاعت کرو. یزید کے مجمع میں, یزید کے سامنے اپنے بھتیجے کی امامت کا اعلان کر لیا, جس کے لیے سارا بیک گراؤنڈ یزید نے بنایا تھا. زینب نے اس قلعے کو ڈھا دیا ایک تقریر, کہا تمہارا امام یہ, تمہارا امام یہ ہے. اب مجمع جناب زینب کی طرف دوڑ, مجمع جناب زینب کی طرف دوڑا تو جناب زینب نے اس مجمع کو سجاد کی طرف بھیج دیا. اپنے وقت کے امام کو پہچانو, یہ قیدی تمہارا امام. پھر میرا جملہ میں بار بار تکرار کر رہا تاکہ ضائع نہ ہو پائے, کہ یزید کے مجمع میں, یزید کے سامنے, یزید کے دربار میں, یزید کے مجمع میں, یزید کے دربار میں, یزید کے سامنے, یزید کے سامنے, یزید کے سامنے اپنے بھتیجے کی امامت کا اعلان بھی کروا دیا, اور بھتیجے کی امامت کو منوا بھی لیا. کچھ یاد آیا, کچھ یاد آیا, کچھ یاد آیا. ایک خاتون اور بھی تھی, اپنے بھانجے کو لے کر گئی تھی کہ اگر ہم جیت گئے تو بھانجے کی خلافت کا اعلان کر دیں گے. نہ خود جیت پائی, نہ بھانجے کی خلافت کا اعلان کر پائی. یہاں زینب ہے جو جیت بھی گئی اور بھتیجے کی امامت کا اعلان بھی کر. دونوں میں بنیادی فرق ہے, دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں خالہ کے بھی ہاتھ کھلے تھے اور بھانجے کے بھی ہاتھ کھلے. یہاں پھوپھی کے بھی ہاتھ بندھے ہیں اور بھتیجے کے بھی ہاتھ بندھے ہیں. مگر بندھے ہاتھوں کے بعد جناب زینب نے اپنے بھتیجے کی امامت کا اعلان کر بھی دیا اور منوا دیا, اور اتنا مضبوط اعلان کر دیا کہ اب بیعت کا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو گیا. سال بھر یزید رہا, ظلم تو کرتا رہا مگر سوال بیعت نہ کر سکا, اس لیے کہ زینب نے بیعت کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ وقت کا امام. یہ کام جناب زینب نے کیا. دوسری بات سنیے آپ, بہت جلدی کہہ رہا ہوں, بہت ساری باتیں کہنے کی تھیں, کہ جناب زینب کے پاس علم لدنی ہے, جناب زینب کے پاس علم غیب تھا, ما کانا ما یکون کا علم ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے وہ سب زینب کو معلوم. ابن عباس اتنے بڑے مفسر قرآن تھے, مگر ابن عباس کی حیثیت نہیں ہے کہ علی کے سامنے وہ تفسیر قرآن بیان کرے. مگر جاؤ تاریخ پڑھو, علی کی موجودگی میں کوفے کی عورتوں کو زینب درس قرآن اور تفسیر قرآن دیتی تھی. یہ ہے جناب زینب کی علمی حیثیت. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی خدمت کر دوں, اور اپنے وقت میں کہ جناب زینب کا منصب پوچھا جاتا ہے کہ جناب زینب کا منصب کیا ہے. آئیے میں جناب زینب کا منصب الہی منصب 5 ہیں. میں نے ایک تقریر میں کہی تھی بات, مگر اس کی وضاحت نہیں کی. نبوات, رسالات, امامات, خلافات, ولایت. نبوت کے منصب پہ جو آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں,
رسالت کے منصب پہ جو آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، امامت کے منصب پہ جو آتا ہے اسے امام کہتے ہیں، خلافت، بڑا جملہ اس سے کہنے جا رہا ہوں، خلافت کے منصب پہ جو آتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں، ولایت کے منصب پہ جو آتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اس وقت میرا موضوع ولایت، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو نظام کائنات کو اپنے ہولڈ میں رکھے، کائنات، چاند، سورج، زمین، آسمان، پوری کائنات کو جو اپنے ہولڈ میں رکھے، اس طاقت کا نام ولایت و ولی ہے۔ اللہ نبی بناتا ہے، نبی ہے نہیں، اللہ رسول بناتا ہے، رسول ہے نہیں، اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں، اللہ خلیفہ بناتا ہے نہیں، ذرا جگیے، مگر اللہ نے ولایت کے شجرے میں اپنے کو رکھا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول ہے، اس کے بعد علی اور اولاد علی۔ ولایت اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، علی کے پاس اور ائمہ کے پاس، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہضم نہ ہو تو وہ بعد میں پوچھ لے گا۔ نبوت، امامت، رسالت، خلافت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، مگر ولایت کے لیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اولاد علی ہونا شرط ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں یہ سب معصومین، امام صادق زیارت میں جناب عباس کے لیے ولی کی لفظ آئی ہے، السلام علیکم یا ولی ابن ولی، آپ پہ سلام ہوئے ولی کے بیٹے ولی۔ جناب زینب کے لیے ولیہ کی لفظ آئی، جناب علی اصغر کے لیے ولی کی لفظ آئی ہے زیارت میں، جناب علی اکبر کے لیے اور جناب قاسم کے لیے ولی کی لفظ آئی۔ ولی کے لیے اولاد علی ہو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو نظام کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھے اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار اپنا پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے اپنے بعد یہ اختیار علی کو دیا۔ اب مجلسوں میں سنتے ہوں گے کہ جب آخری وقت معصوم کا آتا ہے تو دوسرے معصوم کو آثار امامت ودیت کرتا ہے۔ یہ آثار امامت کیا ہے؟ یہ آثار امامت آخری وقت میں کیا ودیت کرتا ہے؟ وہی کائنات کی رسی کو اس کے ہاتھ میں پکڑاتا کہ جلدی پکڑو ورنہ قیامت آئے گی، ساری چیزیں ٹکرا دی، تھام لو۔ ایک معصوم کے ہاتھ سے چھوٹی نہیں کہ فوراً دوسرے معصوم نے پکڑا۔ اللہ نے ولایت پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے اپنے بعد علی کو بلایا، کہا جلدی علی ولایت کو پکڑو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ علی نے اپنے بعد ولایت کی رسی امام حسن کو دیا، کہا میرے لال کائنات کو سنبھالو، اس لیے کہ آج جو کائنات بچی ہے کوئی امام ہے جو ولایت کو کمالے ہوئے ہے پردے سے۔ امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا، امام حسین سن 50 ہجری سے ولایت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سن 60 ہجری آئی، 28 رجب کو ولایت حسین کے ہاتھ میں ہے، چاند ان کے اشارے پہ، سورج ان کے اشارے پہ، زمین و آسمان ان کے اشارے پہ۔ مکے میں آئے ولایت حسین کے اشارے میں ہے، مکے سے کربلا میں آئے، میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں ورنہ گھنٹوں اسی کو سمجھانے میں لگ جائے گا، مگر میرا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ 7 محرم کو ولایت حسین کے ہاتھ میں، چاند ان کے اشارے پہ، سورج ان کے اشارے پہ، زمین ان کے اشارے پہ، آسمان ان کے اشارے پہ۔ 9 محرم آئی، اب ولایت حسین کے پاس ہے۔ اب حسین کے بعد جس معصوم کے ہاتھ میں ولایت جانا ہے، اب تقاضائے عدالت یہ ہے کہ اس کے اوپر غش طاری ہو، ورنہ جہاد آ جائے گا تو پھر اس کو میدان جہاد میں جانا ہوگا تو امامت کی نسل منقطع ہوگی۔ لہذا اللہ نے یہ کیا کہ غش طاری ہو جائے تاکہ اس کے اوپر سے جہاد ساقط ہو جائے۔ اب امام کا غش بڑھتا چلا گیا، 7 محرم سے 8 محرم کو زیادہ، 9 محرم کو غش میں ہے، 10 محرم کو اور زیادہ غش، بابا رخصت آخر کے وقت آئے تو غش ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، زمام حکومت امام حسین کے ہاتھ میں ہے، کائنات کی لجام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے پاس جانا ہے وہ غش میں ہے، جس کے پاس جانا ہے وہ غش میں ہے، جس کے پاس جانا ہے وہ غش میں ہے، وہ غش سے بیدار ہو نہیں سکتا ورنہ اس کو شہادت ہو جائے گی۔ لہذا مصلحت ہے کہ غش میں جائے۔ تو اب زمام حکومت آئے کس کے پاس، اب ولایت آئے کس کے پاس، اس لیے کہ حسین تو شہادت کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا اب حسین میمنہ پہ حملہ کر رہے، تنابو کو پکڑے ہیں، میسرہ پہ حملہ کر رہے، تنابو کو پکڑے ہیں۔ اب حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو اب زمام حکومت حسین کے ہاتھ میں ہے۔ ملک الموت کہہ رہا آقا کیا حکم ہے، ملک الموت کہہ رہا آقا کیا حکم ہے۔ اب حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ولایت کے لیے کیا کیا جائے۔ بٹیلہ زینبیہ سے زینب نے کہا بھیا گھبراؤ نہیں، ولایت ہم سنبھالے لیتے ہیں۔
असर आशूर से लेके शाम गरीबा से लेके जब 11 मुहर्रम की सुबह आई तो विलायत को सैयद सज्जाद के हाथों में मुंतकिल कर दिया। ज़ैनब उस खातून का नाम है कि जिसने इमामत को भी बचाया, कायनात को भी बचा लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए शेख मुफीद ने कहा इसीलिए कहा कि यह नाइब इमाम शहजादी ज़ैनब जो काम कर रही थी। डॉक्टर अनीता राय ने शहजादी के सिलसिले में जो किताब लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में हादसा से कम नुकसान होते हैं, मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा होते हैं। अगर फौरी इक़दाम कर लिया जाए तो बहुत सी सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। मगर हम कायनात में ज़ैनब को सलाम करते हैं कि आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि करबला से लेके शाम और शाम से लेके मदीने तक कि जनाब ज़ैनब को इस जुमले के बजाय ये जुमला कहना चाहिए था, इस इक़दाम के बजाय ये इक़दाम करना चाहिए। ज़ैनब ने जो कह दिया उस लफ्ज़ की वहां ज़रूरत थी, जो इक़दाम कर दिया उस इक़दाम की वहां पे ज़रूरत थी। अब ये तो डॉक्टर अनीता राय का जुमला है ना, हम मुहिब्बों का नहीं। हमारे लिए फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि ज़ैनब के पीछे पीछे वक्त का इमाम चल रहा था 1 साल तक, और कभी सज्जाद ने नहीं कहा फूफी अम्मा ये ना कहिए, ये कहिए, फूफी अम्मा ये ना करिए, ये करिए। इसका मतलब ज़ैनब जो कर रही थी वह मर्जी मशीयत और मर्जी आइम्मा के मुताबिक। और आज ये जो आज़ादारी, ये मजलिस, ये फर्श हुसैन के बुनियाद के कंक्रीट ज़ैनब ने इतनी मजबूत रख दिया कि आंधियां चलती रहीं, खत्म हो गए, मगर गम हुसैन का फर्श सिमटा नहीं कभी। क्यों? इसलिए कि इसमें ज़ैनब का खुलूस शामिल है, ज़ैनब की कुर्बानी शामिल। इस्लाम में बहुत सारे वाक़यात, मगर इस्लाम के 2 बड़े वाक़यात हैं, गदीर और करबला। मैं कभी तफसील से पढ़ूंगा, मगर आज बहुत सारे लोग हैं मुसलमान में, मेजॉरिटी वो है कि जो गदीर नहीं जानती, मगर करबला पूरी दुनिया जानती। करबला घर घर पहुंच गई, इस्लाम का कोई वाक़या घर घर नहीं पहुंच। उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस्लाम के किसी वाक़े के साथ ज़ैनब नहीं थी, करबला के साथ ज़ैनब है। लिहाजा ज़ैनब ने इस मसाइब को घर घर पहुंचा दिया। जिस चीज़ को यजीद ने अहले बैत के लिए जिल्लत का जरिया बनाया कि इनकी तशहीर किया जाए, वही आले मोहम्मद के लिए तबलीग का जरिया बन गया। जहां मैंने दिन की मजलिस में मसाइब छोड़ा था, चंद जुमले उसी के आगे सुन ले आप, कि यजीद ने यह सोचा था कि हम अहले बैत को भूखा रख देंगे, हम अहले बैत को प्यासा रखेंगे तो अहले बैत के पाए सबात में कोई लग़्ज़िश आ जाएगी। हुसैन के जहां तमाम कमालात और मोजज़ात हैं, वह सबसे बड़ा मोजज़ा यह है कि आका अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन ने करबला में सबको हुसैन बना दिया। करबला में हुसैन ने सबको हुसैन बना दिया। हुसैन तो हुसैन थे, कहीं किसी छोटे बच्चे ने भी कोई तारीख बताती है कि कहा हो आका हुसैन से, अपनी प्यास का तो इजहार किया था कि पता चल जाए उम्मत को कि बच्चे कितने प्यासे थे, मगर किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि आका बैत कर लीजिए ताकि पानी मिल जाए। जो आस्म हुसैन में था वो छोटे छोटे बच्चों में था। उसी तरह शहजादी ज़ैनब जब करबला से 60 या 64 बच्चे लेके शाम की तरफ चली तो हर बच्चे को ज़ैनब बना दिया। किसी ने ज़ैनब से यह नहीं कहा फूफी अम्मा यजीद के लश्कर की यह बात मान लीजिए, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में रुलाए सिवाय गम सैयदुश शुहदा में। रो लीजिए, आज 40 की शब है। बस आपने बहुत मेरी मईसों को समाज फरमाया, हौसला अफजाई की। अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो माफ़ फरमाइएगा, फिर कभी आप सुनेंगे, मगर रो लीजिए। हुसैन करबला में बहुत मजलूम था, बहुत मजलूम था। आका पे रोने में कभी कंजूसी न करिएगा, हुसैन पे रोने में कभी कंजूसी न। इमाम फरमाते हैं वो हमारा चाहने वाला नहीं जिसकी जबान पे हमारा नाम आए और आंखों से आंसू।
बिहम्दिल्लाह आपकी आवाज़ें मैं देखता हूं कि बुलंद होती है और आप चीख मार के ढाढ़े मार के रोते हैं। कहीं कहीं थोड़े से लोग पैसे कमा लेते हैं तो हुसैन पे रोना चीख मार के सरो सीना पीट के बावाज़ बुलंद रोने को खिलाफ फैशन समझते हैं। आइए मासूमीन की बारगाह में पूछे कि कैसे रोया जाए। इमाम का सहाबी है अबू बसीर, छठे इमाम का सहाबी, इमाम के खैर में मय्यत हो रही है, अबू बसीर रो रहा है। दौरान मय्यत छठे इमाम सीने और सर पे हाथ मार के कहते अबू बसीर का लब्बैक यमला रसूलिल्लाह, लब्बैक यमला रसूलिल्लाह। इमाम चेहरे पे मात मार के कहते अबू बसीर रोता क्यों नहीं, मेरे जद हुसैन पे रोता क्यों नहीं। उसने चेहरे से रुमाल हटाया, निचोड़ा, कहा मौला देखिए मैं आपके जद पे रो रहा हूं। इमाम फरमाते ये रोना हमें पसंद नहीं है। कहा मौला तो फिर मैं कैसे रो, कैसे जैसे तेरा एक जवान बेटा एक लौता मर जाए मैयत सामने रख, ऐसे रो जैसे मेरी दादी फातिमा रोती, जैसे मेरी दादी फातिमा रोती। तो अल्लाह मेहदी इस वाक़े को बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि आका हुसैन आए, उनके पूरे जिस्म पर ज़र्ब के निशान है, चोट के निशान है जो धीरे धीरे मुंदमिल हो रहे हैं। मैंने पूछा आका ये चोट के निशान कैसे हैं? कहा यह गले पे अली असगर के तीर का निशान है, यह बाजू पे अब्बास का निशान है, यह सारे जिस्म पर असहाब व अंसार के निशान है। वायतुल्लाह पूछते ये बता कि आपके ये जख्म अच्छे कैसे होते हैं? तो इमाम ने रो के कहा जब हमारे आज़ादार हम पे गिरिया करते हैं तो हमारी माँ उन आंसुओं को लेके आती है और हमारे जख्मों पे लगाती है, वो हमारे जख्म अच्छे हो जाते हैं। मैं उन्होंने चीख मार के कहा मौला ये कलेजे पे कैसा जख्म है जो अभी ताज़ा है? इमाम ने रो के कहा यह अली अकबर की बर्छी का निशान है। ये आज़ादारों ऐसा रो कि वो जख्म मुंतमिल हो जाए। वही शेख मेहदी बताते हैं वो करबला के इमाम थे, शमाज थे। वो कहते थे काफिला आया और लोगों ने कहा कि थोड़े से मसाइल पढ़ दिए, तो मैं जरी इमाम से टेक लगा के जरी के पास बैठा हुआ हौले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में चंद जुमले मसाइल के पढ़ दिए और इत्तेफाक से मैंने अली अकबर का मसाइल पढ़ दिया। वो बयान करते जब मैं रात में सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि शहजादी फातिमा पायज़ी आगे खड़ी हो गई और कहती है आयतुल्लाह मेहदी आज के बाद कभी जरिए हुसैन पे अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना, कभी जरिए हुसैन पे अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। आयतुल्लाह मेहदी ने हाथों को जोड़ा, बेशहजादी मसाइब में कोई गलती हो गई, पढ़ने में कोई रवायत में गलती हो गई? कहा नहीं कुछ गलती नहीं हुई। कहा तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? कहा तुमने ये मसाइब पढ़ा ना कि हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। कहा हाँ बीबी क्या मैंने गलत पढ़ा? कहा नहीं गलत नहीं पढ़ा, मगर जब से तुमने ये मसाइब पढ़ा है ना, ज़ैनब हुसैन के गलों में बाहें डाल के कहती है भैया मैंने अली अकबर को इसी दिन के लिए पाला था, मेरा अली अकबर बरसियों के लिए था। हाय रे ज़ैनब का कमाल, ज़ैनब के नियाबत करबला में। लीजिए मैंने दरमियान के मसाइब ख़त्म कर दिए। अरे कहती हमारे सारे मराजा इकराम लिखते हैं कि करबला में सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त वो था जब आका हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए थे। इसलिए कि हर शहीद आता था तो बीवियों को इतनी ढारस रहती थी ना कि अभी हमारे सरपरस्त हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं। मगर जब हुसैन आए ना और कहा या ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैकुन्न मिन्नी सलाम, तो सारी बीवियों की आस टूट गई, सारी बीवियों की आस तोड़ गई। और हर बीवी हुसैन से यही कह रही थी आका हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं, मौला हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? हुसैन आसमान की तरफ देख के कहते खुदा के हवाले करके जा रहे हैं। और उसके बाद इमाम ने अगर जुमला का ये परवरदिगार तू मेरी मजलूमी पे गवाह है, तो मेरी बेकसी पे गवाह है। उसके बाद खुदा आप सबको करबला के ज़ियारत नसीब करे तो आप जाके देखेंगे कि इमाम न जाने क्या वजह थी, मसलहत तो इमाम जाने, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा कई बार करबला में कि जो मुखय्यम है इमाम हुसैन का, उससे काफी फासले दूर पर इमाम हुसैन जुलजना को छोड़ के आए थे। इमाम रुखसत आखिर के वक्त जुलजना को दर खेमा पे नहीं लाए थे,
उस जगह पे अभी होटल बन गया, जाके देखिएगा कभी ज़ियारत के लिए। काफी दूर मकाम है, ये आपका सिग्नल इतनी दूर वो जगह है जहां इमाम जुलजना को छोड़ के खेमे में पैदल आए थे। आजादार, अब इसके बाद में मसाइब पढ़ने की बात है। अब जब इमाम यहां से गए जुलजना के पास तो कहते ये जुलजना चल मुझे मख्तल में पहुंचा दे। जुलजना ने कोई जवाब न दिया। इमाम कहते जुलजना बोल क्यों नहीं रहा है? जुलजना ने कोई जवाब न दिया। इमाम फरमाते जुलजना मेरा कोई मददगार नहीं है। जुलजना ने ज़बान बेज़बानी में सोमों की तरफ इशारा किया तो इमाम ने देखा लिपटी हुई सकीना इतनी दूर दौड़ी चली गई। जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। इमाम फरमाते हैं सकीना तुम इतनी दूर आ, ए सकीना हमें जाने दो। सकीना कहती है बाबा एक बार हमें सीने पे सुला लीजिए। हुसैन जलती रेत पे लेट गए। हुसैन जलती रेत पे लेट गए। सकीना सीने पे प्यार किया। हुसैन फिर खीमे के पास ले आए, ज़ैनब बच्चों को संभालो। मैं इसी जुमले के लिए मैंने पूरा यह मसाइब पढ़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से सुना रहा हूं। अब वापस हुसैन रोते हुए, अब ताब न है हुसैन में, आके जुलजना से कहते ए जुलजना, ए जुलजना आ चल मैं अपने नशेब दिखा दूं। ए जुलजना, सुबह से ये भी तो लाशें उठा के थक चुका है ना, हाँप रहा। तो हुसैन ने कहा ए जुलजना आ चल मैं वो नशेब दिखा दूं जहां मैं ज़िबा किया जाऊंगा। आ चल मैं वो जगह दिखा दूं जहां मेरे गले पे खंजर चलेगा। रवायत का जुमले यह है कि जुलजना ज़बान बेज़बानी में गोया हुआ और हुसैन की तरफ देख के कहता फर्जंद रसूल हमें आपके मख्तल का इल्म है, हमें आपकी शहादतगाह की इल्म है, हमें वो नशे मालूम है जहां आप ज़िबा किए जाएंगे। इमाम चौक के कहते जुलजना क्या कहता है? मेरी शहादतगाह का इल्म तो सिर्फ नबी और इमाम को है, गैर मासूम को नहीं है। जुलजना जल्दी बता तुझे किसने बताया, तुझे कैसे पता चला? जुलजना कहता फर्जंद रसूल सुनिएगा? कहा हाँ जल्दी बताओ। कहा ये मसाइल सुनिएगा? कहा हाँ जल्दी बताओ। तुम्हें कैसे पता चला? जुलजना रो के कहता मौला शब आशूर आधी रात के बाद जब आप खेमे में तस्बीह तहलील में मसरूफ थे ना मेरे मौला, जब आप खेमे में तस्बीह तहलील में मसरूफ थे ना, वो उसी वक्त एक बीबी काली कफनी ओढ़े आई और अपने हाथ को मेरे गर्दन में डाल के कहा जुलजना मुझे पहचान, मैं तेरे नबी की बेटी ज़हरा हूं। ए जुलजना मुझे पहचान, मैं तेरे हुसैन की मां फातिमा हूं। ए जुलजना जालिमों ने मेरे लाल को घेर लिया है, कल सारे असहाब व अंसार मारे जाएंगे। आ चल मैं वो जगह दिखा दूं जहां मेरा हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। लिहाजा आहिस्ता मेरे हुसैन को लाना ताकि मेरे हुसैन को अजियत न हो। हुसैन रो के कहते अम्मा आप हैं करबला में? मख्तल से आवाज आई हुसैन कोई रहे या न रहे, ये माँ क्यों न रहेगा जिसने चक्कियां पीस के पाला। ये हुसैन अगर इम्तिहान न होता तो मैं ये होने न देती। अजरकुम अल्लाह। इतने में आका हुसैन ने क्या देखा कि फौजें खेमे के बिल्कुल करीब आ गई। इतने में आका हुसैन ने क्या देखा कि फौजें खेमे के बिल्कुल करीब आ गई और ललकारने लगी हुसैन क्या बात है कि तुम आ नहीं रहे? हुसैन आओ वरना हम खेमे में दाखिल हो जाएंगे। इमाम ने जुल्फ़िकार निकाली, कहा तुम्हारी मजाल, हमारी जिंदगी में खेमे में दाखिल हो जाओ। अब मीर अनीस अलैहिर्रहमा की एक बंद पढ़ के मैं मजलिस को मुकम्मल कर दे रहा हूं। इमाम फरमा दे तुम्हारी मजाल को तुम खेमे में आ जाओ। इमाम ने कभी मैमना पे हमला किया, कभी मैसरा पे हमला किया, कभी कल्ब लश्कर पे हमला किया। फौजें भागने लगी। वहीद इब्न मुस्लिम कहता कभी हुसैन एक हाथ से तलवार चलाते थे, कभी दोनों हाथों से तलवार चलाते थे और रोते जाते थे, पटके को बांधे हुए थे कमर को और रोते जाते थे और लड़ते जाते। तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, तुमने मेरे असहाबों अंसार को मार डाला। आओ आओ हमारे मुकाबले में, आओ आओ। हमारे हर घोड़ा हाँप रहा था, हुसैन लड़ रहे थे, जुल्फ़िकार लड़ रही थी कि मैमना और मैसरा पे ये लश्कर है। मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अब फौजों में हिम्मत न थी कि वह हुसैन के मुकाबले में आते। मीर अनीस अलैहिर्रहमा की रूह की शादनी के लिए यह जुमला कह रहा हूं। मीर साहब फरमाते हैं कि फौजों में हिम्मत न थी ना
बड़ा जुमला है, हम मर जाएंगे ये जुमला सुन के कि किसी में हिम्मत न थी कि वो हुसैन के मुकाबले में आता। फौज कूफे की तरफ भागने लगी, जो हमने सोचा है ना टकराने लगे, ये वही मंजर है, ये असर के वक्त का मंजर है। अब किसी में हिम्मत न थी तो मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उस वक्त बसरे का पहलवान पूरे अरब में सबसे बड़ा शुजा और बहादुर माना जाता था, जिसकी ताकत 100 पहलवानों के बराबर थी, और ये शिकार करने के लिए करबला के जंगलों में आया था और इसने अपनी आमद की इत्तला उमर साद को दे दी थी। उमर साद ने जब देखा कि अब कोई हुसैन पर कब्जा नहीं हासिल कर पाएगा तो उसने खत लिखा और तेज रफ्तार सवारी से भेजा उसके खेमे में, और उसकी हेडिंग ये थी, ये पहलवान बसरा, एक खारजी ने बादशाह वक्त पे खुरूज किया है और वो तनहा पूरे लश्कर पे भारी है, जल्दी आ उसका काम तमाम कर दे, तुझे बड़ा इनाम और इकराम दिया जाएगा जो मांगेगा, मगर देख आने में कोई ताखीर न करना। मीर साहब कहते हैं कि पहलवान बसरा के एक 4 साल की बच्ची थी जिसको वो बहुत चाहता था, इतना चाहता था कि जहां जाता था बच्ची को साथ ले के जाता था, कभी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ता था। जब उसके खेमे में खत गया तो उसने पढ़ा और शुजाअत में अंगड़ाई लिया कि मेरी जिंदगी में किसमें मजाल है कि उसने बादशाह पे खुरूज कर दिया, अभी मैं उसका काम तमाम करता हूं। ज़रा खुद और जाली और तलवार को हिमायल किया और बच्ची का प्यार किया और अपनी बच्ची से कहा, मेरी बच्ची मैं बहुत बड़ी शुजा के मुकाबले में जा रहा हूं, जो बादशाह के मुकाबले में आया है बड़ा इनाम और इकराम पाऊंगा, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताओ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। बहुत रोइएगा। बच्ची कहती नहीं कोई ख्वाहिश नहीं। कहा नहीं बताओ, हमें बड़ा इनाम मिलेगा, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। बच्ची कहती बाबा ये ख्वाहिश बड़े दिन से थी, मैं कह नहीं पा रही थी। कहा बताओ क्या ख्वाहिश है। कहा ये बाबा हम अकीक की अंगूठी चाह रहे हैं। पहलवान बसरा ने कहा कोई बात नहीं, लीजिए मैं दरमियान के सारे मसाइल छोड़ रहा हूं, जो मीर साहब का बंद है वो सुना रहा हूं। वो घोड़े को दौड़ाता हुआ आया फौज यजीन में। उमर साद से कहा बता वो कौन है कि जो तन्हा पूरे लश्कर पे भारी है। उसने उंगली से इशारा किया, वो ज़ईफ जो खून में नहाया हुआ मैदान में खड़ा है। इमाम के जख्मों पे जख्म लगे हुए थे। मिनहाल ने आका सैयद सज्जाद से पूछा, बड़े मोतबर रावी, ये आका मैंने एक रवायत सुनी है, क्या ये सही है जो आपसे मंसूब है? कहा क्या? कहा जब रुखसत आखिर के वक्त आपके बाबा आए तो आप अपने बाबा को पहचान ना पाए। इमाम ने कहा हाँ सही है। कहा मौला कैसे मुमकिन है कि बेटा बाप को ना पहचान पाए? इमाम ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारा। कहा इसके दरमियान में जो थोड़ी सी जगह देख रहे हो? कहा हाँ। कहा तेरा इमाम कहता कि जब मेरा बाबा आया तो सर से पैर तक इतनी भी जगह नहीं बची थी जिस पे तीर न लगाओ। मेरा बाबा सर से पैर तक खून और जख्मों में नहाया हुआ था, तीरों पे तीर लगे हुए थे। उमर साद लीजिए मसाइल खत्म हो गया, 2 मिनट के मसाइल है। उमर साद आके इमाम के मुकाबले में खड़ा हो गया, कहता ए ज़ईफ तो मैदान से पलट जा, ए ज़ईफ तो मैदान से पलट जा। न जाने कितना दर्द था इमाम के जुमले में कि पहलवान बसरा का कलेजा फट गया। इमाम ने रो के कहा पहलवान बसरा अगर तेरे सीने में दिल है तो इंसाफ से बता, ये 57 साल बूढ़ा पलट के क्या करेगा जिसका 18 साल कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ के दुनिया से जा चुका है, जिसका 32 साल भाई अब्बास बाजू कटा के फुरात के किनारे सो रहा है, जिसके भतीजे कासिम का लाशा पामाल हो गया, मेरा 6 महीने का बच्चा असगर भी मारा जा चुका है। ये पहलवान में बसरा अब हमें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, अब हमें कोई जीने की तमन्ना नहीं है, हमारी दुनिया खाक हो गई, हमें जमीन से आसमान तक धुआं दिखाई दे रहा है। एक मरतबा पहलवान बसरा घोड़े से कूद गया। कहा ये ज़ईफ ये क्या कह रहा? अब्बास अली अकबर और मोहम्मद कासिम अली असगर ये सब तो मुसलमानों के नाम हैं। अरे जल्दी बता कहीं तो मुसलमान तो नहीं है, इसलिए कि आज तक कभी हमने मुसलमान से जंग नहीं किया है, वला हमारी शिकस्त हो जाए। पर इमाम सुलझना से नीचे उतरे और अपनी उंगली से अकीक की अंगूठी उतारी, अपनी उंगली से अकीक की अंगूठी उतारी और पहलवान बसरा के हाथ पे रख दिया और कहा ये पहलवान बसरा ये अंगूठी ले जाके अपनी बेटी को दे देना। रो लीजिए खत्म हो गई। मैं ये अंगूठी ले जाके अपनी बेटी को देना जिसने तुझसे फरमाइश किया था कि अकीक की अंगूठी लाना, उसे दे देना और मेरा एक पैगाम पहुंचाना। पहलवान बसरा कहता वो क्या? कि अपनी बच्ची से कहना कि तू बड़ी खुश नसीब थी कि तूने अपने बाप से फरमाइश किया, तेरे बाप ने तेरी फरमाइश पूरी कर दी, मगर हाय या हुसैन सुगरा ने कहा था बाबा
जहां रुकिएगा या खुद आइएगा या भैया अली अकबर को भेजिएगा। ए पहलवान बसरा अली अकबर शहीद हो गए, मैं आमादे शहादत हूँ। पहलवान बसरा कदमों पे गिर गया। ये गैब की बात है तो नबी और इमाम जाना करते हैं। क्या माजरा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये जो तुमने मदीने का नाम लिया तो क्या तू मदीने का रहने वाला है? इमाम फरमाते हाँ मैं मदीने का रहने वाला हूँ। क्यों, तू मदीने को जानता है? पहलवान बसरा कहता मैं ना जानूंगा, मदीने में मेरा इमाम रहता हूँ। मैं ना जानूं, मेरा इमाम रहता है। कहा कौन है तेरे इमाम? कहा हसन मुश्तबा मेरे इमाम थे, उनकी शहादत के बाद उनके छोटे भाई हुसैन हमारे इमाम। अब इमाम रो के कहते पहलवान बसरा कभी तूने हुसैन को देखा है? कभी तूने हुसैन को देखा है? कभी तूने हुसैन को देखा है? कहा कैसी बातें करता है, मैं हर साल पाबंदी से हज में जाता हूँ और वहां से फिर मदीने हुसैन के कदम बोसी के लिए जाता हूँ। सिर्फ इस बार हज में नहीं जा पाया और हुसैन के ज़ार न कर पाया। अब भाई सुनिए, मीर अली सलेरामा फरमाते हैं कि जैसे उसने कहा कि सिर्फ इस साल हमने हुसैन की ज़ारत नहीं किया, तो हुसैन ने गर्दन को झुकाया। मीर साहब की बैत है, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन है, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो। मौला ने सर झुका के कहा